Hello students, good morning. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Okay, can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Okay, so in yesterday we studied the MOSFET capacitance which were oxide related capacitance. Okay, तो ऑक्साइड पिक्चर में आ रहा था. हम लोगों ने उसमें सबसे पहले देखा ओवरलैप कैपेसिटेंस, CGS ओवरलैप, CGD ओवरलैप. ओके, सो आफ्टर दैट वी स्टडीड the capacitance, again the oxide related, but they will be present depending on the mode. Okay, whether the MOSFET is operating in linear mode, whether it is in saturation or active. So in three different regions we have different capacitances value. Okay, that we have seen. And तुम लोग को मैंने एक टेबल स्टडी करने बोला था. Okay, have you studied this table? So is it clear? Yes, ma'am. Clear. Okay. So this table मैंने बोला था कि this table is nothing but the mixture of overlap capacitances plus जो this because of modes, okay, that is active mode, linear mode and saturation mode. तो इसके वजह से जो capacitance आता है, that capacitance and overlap capacitance, that is the mixture of these two. So from that you can calculate the total capacitance. Okay, so that is oxide related capacitance. Okay, now write down second type, junction capacitances. Write down second type, junction capacitances, also called as diffusion capacitances. So write down second type as MOS junction or diffusion capacitances. MOS junction or diffusion capacitances. Okay. Now can you see this figure 3.33? Yes, ma'am. Okay. Now what is this? This is nothing but cross-sectional view, or you can say 3D view. Okay. This is a 3D view of. Now here this part is shown. That means suppose if this is drain. Okay. तो यहाँ पे source है. So drain जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे source होगा. So now we will consider on drain. जो drain के साथ हो रहा है same thing will happen with source. Now we are going to study the junction capacitances. Now simple question, where you can find the junction capacitance? Junction का capacitance कहाँ पे present होगा? Between gate or between the junctions or terminals. Junction, between the junction. Okay, junction मतलब between the junction नहीं, it is at the junction. Okay, तुम लोग को पता है डायोड. डायोड में हम लोग ने, डायोड इज नथिंग बट अ पीएन जंक्शन डिवाइस. वहां पे एक पी टाइप है, एक एन टाइप है. दोनों के बीच में जो बाउंड्री होता है, दैट बाउंड्री इज कॉल्ड एज द जंक्शन. ओके, तो जहां जहां पे भी जंक्शन होता है वहां वहां पे कैपेसिटेंस पिक्चर में आएगा ही. ओके, सो वी हैव स्टडीड दैट इन केस ऑफ डायोड. डायोड में फॉरवर्ड बायस में भी कैपेसिटेंस होगा एंड रिवर्स बायस में भी कैपेसिटेंस होगा. ओके, वैरेक्टर डायोड है. वैरेक्टर डायोड में देयर इज अ कैपेसिटेंस एट द जंक्शन व्हिच इज यूज्ड एट द रिवर्स बायस. So as you change the reverse bias, the capacitance of that varactor diode will change. ओके, सो एक चीज सिंपल याद रखो, जंक्शन कैपेसिटेंस मतलब क्या? जहां पे भी पी एंड एन इसका जंक्शन आ रहा है वो वहां पे कैपेसिटेंस विल एग्जिस्ट एंड दैट कैपेसिटेंस इज कॉल्ड एज जंक्शन कैपेसिटेंस और इट इज कॉल्ड एज मॉस डिफ्यूजन कैपेसिटेंस. तो ये याद रखो. ओके, ऑक्साइड रिलेटेड कैपेसिटेंस कहाँ पे आया था? जहां पे ऑक्साइड लेयर प्रेजेंट था. ओके, मतलब ऊपर सपोज एक गेट टर्मिनल है, नीचे सबस्ट्रेट है और बीच में अगर ऑक्साइड है, देन देयर इज अ ऑक्साइड लेयर कैपेसिटेंस और यू कैन से ऑक्साइड रिलेटेड कैपेसिटेंस. फिर गेट है, देन सोर्स है और बीच में ऑक्साइड है, देन अगेन देर इज अ CGS ऑक्साइड रिलेटेड कैपेसिटेंस, सिमिलरली CGD. तो वो जो था दैट वाज बिकॉज ऑफ द ऑक्साइड लेयर. बट अभी जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द जंक्शन प्रेजेंट. तो जंक्शन कहाँ पे होता है? व्हेन देर इज वन पी टाइप एंड वन एन टाइप रीजन्स मीटिंग टुगेदर, so boundary is called as a junction. अभी तुम लोग को यहाँ पे चेक करना है कि जंक्शन कहाँ कहाँ पे रहेगा. ओके, सो वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट. यहाँ पे जो फिगर दिखा दैट इज 3.33. तो यहाँ पे कैन यू सी दिस फर्स्ट वॉल, वन फर्स्ट वॉल, देन दिस इज सेकेंड वॉल, थर्ड वॉल, फोर्थ वॉल एंड फिफ्थ. फिफ्थ मतलब यू कैन से बॉटम. ओके, तो तुम लोग को पता है कि ये जो पूरा ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है, ओके, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है, दिस बॉक्स इज नथिंग बट अ ड्रेन. तो जो ड्रेन रहता है
that drain is n plus diffusion. Is it okay this point? Drain is पूरा n plus diffusion region. तो ये जो बॉक्स है ये पूरा n plus diffusion है. ओके, अभी ये बॉक्स के आजू बाजू में कौन सा रीजन है? What is the Hello, region? ma'am. हाँ, hello. Sorry to interrupt. Few students are waiting outside. Can you Okay, let them in? हाँ, wait. Okay, tell them to join now. Yes, ma'am. Tell them to join now. और कोई है? Is there anyone? Yes, ma'am. One more guy. Okay, do you know your term test is there in next week? Yes, ma'am. Yeah. I think dates are 17 onwards. Ma'am, what about the syllabus? Syllabus will be अभी कल वेडनेसडे है ना, आज पूरे ट्यूसडे, तो वेडनेसडे sir. कल जितना भी होगा सिलेबस, ओके, कल जितना भी होगा टिल दैट यू विल हैव द सिलेबस फॉर दिस टर्म टेस्ट 1. ओके, तो मतलब आज अब तक मींस ऑक्साइड रिलेटेड कैपेसिटीज इज टुडे वी विल कंप्लीट, आई थिंक जंक्शन कैपेसिटेंस हो जाएगा एंड जस्ट वी विल स्टार्ट, विल चेक इफ वी कैन स्टार्ट विद द मॉड्यूल 2. ओके, तो मॉड्यूल 2 का स्टार्टिंग पार्ट विल बी देयर एंड अगेन इन टुमारोज लेक्चर वी कैन एटलीस्ट CMOS इन्वर्टर का इंट्रोडक्शन विल स्टार्ट एंड विल ट्राई टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट डिपेंड्स कि कितना होता है, तो जितना भी होगा whatever will be covered in tomorrow's lecture, so that till that point you have to study for your term test 1. And one more thing, ma'am. Ma'am, can we expect numericals on MOSFET scaling and fabrication? अभी फिलहाल तो नहीं, नो न्यूमेरिकल्स इन टर्म टेस्ट 1. जब तक मैंने कुछ न्यूमेरिकल तुम लोग को बताया नहीं है तब तक तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा. ओके, Yes, ma'am. जो भी रहेगा थियोरेटिकल क्वेश्चंस विल बी देयर. ओके, एनीबॉडी इज देयर? अभी कोई है No, ज्वाइनिंग ma'am. का? All So, done. हो गया ना? तो नाउ कैन वी स्टार्ट? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. सो नाउ, हाँ, सो ये ड्रेन डिफ्यूजन है. ओके, सो दिस इज अ ड्रेन डिफ्यूजन रीजन. सो इन ड्रेन डिफ्यूजन रीजन तुम लोग को पता है कि ड्रेन डिफ्यूजन जो है वो पूरा n प्लस रीजन से बना है, n प्लस डिफ्यूजन से बना है. ओके, नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द मटेरियल सराउंडिंग द डिफ्यूजन रीजन. व्हाट इज द मटेरियल ओवर हियर? अगर ये 4 नंबर है तो इसके नीचे दिस इज द n प्लस डिफ्यूजन. व्हाट इज देयर बिलो दिस? व्हिच रीजन इज सराउंडेड बाय दिस पूरा ड्रेन? What is there? You know the construction of MOSFET, right? P substrate, right? Okay, तो तुम लोग को पता है ये पूरा यहाँ पे जो सराउंडिंग जो रीजन रहेगा दैट इज P substrate. ओके, तो नीचे भी P substrate है और ये साइड के जो वॉल्स है इसके साइड में भी जो रहेगा दैट इज अ P रीजन, P substrate रीजन ओवर देयर. एंड चैनल कहाँ पे होता है? चैनल इज इन बिटवीन हियर, दैट इज बिलो गेट, गेट के नीचे बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन देयर इज अ चैनल. ओके, but channel again that will come when you will apply the voltage, that is VGS. okay, तब तक तो चैनल नहीं रहेगा. so you know that there is a by default substrate present. substrate तो हमेशा रहता ही है. okay, or surrounding this n plus region. now the question is, can I say that so there is a junction form? which junction I am saying? P and n plus junction. P मतलब कौन? that is substrate and n plus मतलब drain diffusion. okay, तो यहाँ पे कहाँ पे n प्लस एंड p जंक्शन विल फॉर्म, दैट वी हैव टू चेक. सो यहाँ पे दिस फर्स्ट मतलब यहाँ पे एक बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब देयर इज अ जंक्शन फॉर्मेशन. अगेन सेकंड पे बाउंड्री है, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे. नाउ वी विल सी
what are these junctions. Okay, so first पे we'll check. So there is a table given over here. So junction 1 2 3 4 5, जो 1 2 3 4 5 यहाँ पे regions दिखाए हैं. ओके, सो ये जंक्शन फॉर्म कर रहा है. तो ये जो फर्स्ट जंक्शन है 1, दैट जंक्शन इज बिटवीन n प्लस एन पी. ओके, n प्लस एन पी. सो ये n प्लस एन पी यहाँ पे है. सो n प्लस और p के बीच में ये जंक्शन हो गया 1. नाउ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस जंक्शन. मतलब ये जो वॉल है ना, 1 का जो वॉल है उसका एरिया क्या रहेगा, टेल मी. नाउ हियर सी डायमेंशंस आर गिवन. डायमेंशन दिया है. ओके, xj is the height, you can say w is the width, and ये जो डायरेक्शन है that is y. Okay, this length, this diffusion का ये जो length है that is y. Okay, so now tell me what will be the area of 1. What will be area of 1? w into see ये वाला xj, right. So check first junction जिसका एरिया है w into xj, एंड कौन सा जंक्शन है वो, n प्लस और p के बीच में. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट सेकेंड जंक्शन. सेकेंड मतलब ये वाला. तो अगेन सेकेंड का एरिया क्या रहेगा, पहले जल्दी से कैलकुलेट करो. y इंटू XJY. वहाँ xj इंटू वाई. ओके, सेकेंड का चेक करो. सो y इंटू xj, चेक दिस टेबल. y इंटू xj, एंड ये कहाँ पे किसके बीच में है जंक्शन, n प्लस एंड p प्लस. ओके, n प्लस एंड p प्लस. सो सेकेंड इज बिटवीन n प्लस मतलब डिफ्यूजन, एंड p प्लस मतलब सबस्ट्रेट. थर्ड जंक्शन कहाँ पे है, थर्ड जंक्शन कहाँ पे है, इन बिटवीन व्हाट, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ थर्ड, W into XJ. w into xj. Okay, so third is w into xj, and that is between n plus and p plus. Okay, fourth, what will be area, Y into XJ. y into xj. Okay, y into xj, and ये जंक्शन किसके बीच है, n प्लस एंड PN. PN N plus. p प्लस. p प्लस मतलब सबस्ट्रेट. फिफ्थ मतलब बॉटम लेयर. ओके, अगेन ये किसके बीच में है, what is the Substrate area, and N plus. substrate and yes, diffusion. What is the area, W into Y. w into y. W into y. Okay, so in this way we will write the formula for area of various junction. अभी उसके बाद क्या है, सी नाउ व्हेन दिस जंक्शन कैपेसिटेंस इज फॉर्म. ओके, जंक्शन जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे कैपेसिटेंस आएगा पिक्चर में. नाउ हियर वी विल यूज द फॉर्मूला xd. अभी ये xd क्या हो सकता है, यू नो दैट देयर इज अ जंक्शन. तो जंक्शन है मतलब वहाँ पे कैपेसिटेंस आएगा. नाउ हियर वी विल अप्लाई द थियरी ऑफ डायोड. तो डायोड में तुम लोग को पता है हम लोग xd करके एक लिखते थे. व्हाट इज दिस xd? दिस xd इज नथिंग बट द डिप्लीशन रीजन विड्थ. ओके, xd is nothing but depletion region width, and this depletion region width is dependent on, xd is the depletion region width and that is dependent on bias voltage. ये जो V है that is the bias voltage and doping quantities. Okay, Na मतलब acceptor ion doping, acceptor ion concentration, and Nd is the donor ion concentration. Phi naught is the built-in junction potential. Again this formula was there in डायोड. ओके, तो डायोड जंक्शन मतलब बेसिक डायोड, तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि वहां पे डायोड फॉर्म हुआ है. सो वी कैन यूज दोज फॉर्मूलाज. सो ये फॉर्मूलाज है. नाउ xd और फाई नॉट एक बार तुम लोग को समझ में आया. xd इज द डिप्लीशन विड्थ. याद रखो, जहां पे भी जंक्शन रहेगा वहां पे कुछ डिप्लीशन रीजन होगा, उसका कुछ विड्थ होगा. दैट विड्थ इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ 3-3.99, दैट इज xd. एंड फाई नॉट इज जंक्शन है मतलब वहां पे कुछ पोटेंशियल बैरियर होता है, पता है तुम लोग को डायोड में था. सो वो जो पोटेंशियल बैरियर है उसको बोलते हैं बिल्ट इन जंक्शन पोटेंशियल, एंड उसका फॉर्मूला इज गिवन इन 3.1. ओके, सो ये जो दो बेसिक फॉर्मूलेज है ये तुम लोग को याद रखने हैं. फाई नॉट इज व्हाट, बिल्ट इन पोटेंशियल. वी क्या है, व्हाट इज वी? वी इज द बायस वोल्टेज. ओके, एक्सटर्नली जब तुम लोग कुछ वोल्टेज अप्लाई करोगे सो दैट वोल्टेज इज कॉल्ड एज वी. एक बार xd एंड फाई नॉट हो गया, देन यू कैन राइट cj0. नाउ cj0 इज द वैल्यू ऑफ जंक्शन कैपेसिटेंस.
तो CJ0 is the junction capacitance per unit area. Okay, what is this? It is a zero bias. जीरो है, CJ0 मतलब जीरो बायस. जीरो बायस मतलब V का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा. ओके, तो 3.99 में जीरो बायस मतलब यू आर नॉट अप्लाइंग एनी बायस वोल्टेज, तो V नहीं है यहाँ पे, सो V इज नॉट देयर. सो CJ0 is the junction capacitance per unit area at zero bias. ठीक है, उसका ये फॉर्मूला है. C इक्विवेलेंट लार्ज सिग्नल कैपेसिटेंस कैन बी, अभी ये था जीरो बायस पे. लार्ज सिग्नल कैपेसिटेंस मतलब तुम लोगों ने कुछ एसी सिग्नल अप्लाई किया है. ओके, देन जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो ये है. अभी सब इतने सब वैल्यूज तुम लोग को जो इक्वेशन याद रखना है, दैट इज 3.99 XD, phi naught एंड CJ0. ये तीन चीजें याद रखो, 3.99, 3.1 एंड 3.105 बस. तो इन दिस वे वी विल राइट द इक्वेशन फॉर CJ0 XD एंड phi naught. नाउ C इक्विवेलेंट मतलब जहां पे भी जंक्शन फॉर्म हो रहा है वहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है. So that equivalent capacitance is given by C equivalent. So this equation is important. C equivalent is equal to A into CJ0 into K equivalent, where K equivalent CJ0 तो ऊपर से मिलेगा, A मतलब एरिया, जो जंक्शन तुम लोग जो जंक्शन पे तुम लोग को कैपेसिटेंस फाइंड करना है वो जंक्शन का एरिया. जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग को फर्स्ट जंक्शन पे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो इसका एरिया रहेगा W इंटू XJ. तो दिस इज A का वैल्यू. ओके, सो A इज द एरिया. तो C equivalent हम लोग कैसे लिखेंगे, A into CJ0 into K equivalent, where K equivalent is a constant which is given by this formula. Okay, it is a voltage equivalence factor. ठीक है, then CJ0 SW. अभी SW क्या है पता है, साइड वॉल जंक्शन कैपेसिटेंस. साइड वॉल मतलब यहाँ पे .29 and 3.33, that side walls of a typical MOSFET source or drain diffusion region are surrounded by P plus channel stop implant. Okay, P plus channel stop implant. See, ये जो P plus है, okay, यहाँ पे हम लोगों ने दो एरिया देखे, that is regions, that is P and P plus. So P जो है, that P is your substrate, and what is P plus? P plus is channel stop implant. Can you recollect where we have seen this channel stop implant? CMOS. बताया था ना मैंने, कहीं पे तो डायग्राम आया था. ओके, कैन यू सी दिस डायग्राम 3.29? हेलो, ये डायग्राम दिख Yes, रहा है? ma'am. ओके, तो अभी ये डायग्राम ठीक से देखो. तो सी यहाँ पे देखो, दिस ये ड्रेन रीजन है. कॉन्सेंट्रेट ऑन द ड्रेन रीजन. ड्रेन रीजन ये है. ड्रेन रीजन का ये साइड का वॉल मतलब चैनल वाला जो वॉल है, यहाँ पे P सबस्ट्रेट है. सबस्ट्रेट जो है ना, दैट इज P रीजन. इट इज नॉट P प्लस. चैनल स्टॉप इम्प्लांट इज P प्लस. ये याद रखो, व्हाट इज द डिफरेंस इन P एंड P प्लस. ओके, सबस्ट्रेट जो है दैट इज P. तो सबस्ट्रेट कहाँ पे है, दिस इज अ फर्स्ट वॉल. ये फर्स्ट वॉल था ये साइड पे, तो यहाँ पे P है, डाउन साइड पे P है. ओके, 5 पे. ये दो ही वॉल पे P है, बाकी तीन साइड जो रहेंगे पीछे का ये वाला ओके, और टॉप वाला. सो देयर विल बी चैनल स्टॉप इम्प्लांट विच इज अ P प्लस. इज दिस पॉइंट क्लियर? P प्लस कहाँ पे आ रहा है और P कहाँ पे आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, और इसी के वजह से वहां पे जो हम लोगों ने जंक्शन का फॉर्मूला लिखा है, दैट इज यू कैन से, कहाँ पे गया? ओके, सी यहाँ पे 1 एंड 5 मतलब बॉटम. ओके, तो चेक 1. सी 1 फर्स्ट जंक्शन जो है दैट इज बिटवीन N प्लस एंड P मतलब सबस्ट्रेट. एंड अगेन फिफ्थ जंक्शन जो है दैट इज अगेन N प्लस एंड P मतलब सबस्ट्रेट. बट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जो वॉल है दैट इज बिटवीन डिफ्यूजन एंड चैनल स्टॉप इम्प्लांट. चैनल स्टॉप इम्प्लांट इज P प्लस. मतलब 2, 3, 4 जो है, यहाँ पे चेक करो. 2 मतलब ये वाला वॉल, 3 मतलब ये वाला वॉल, एंड 4 मतलब ये वाला वॉल, मतलब साइड वॉल बोलते हैं इसको. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ साइड वॉल. तो साइड वॉल पे जो जंक्शन बन रहा है वो चैनल स्टॉप इम्प्लांट
और एन प्लस डिफ्यूजन का जंक्शन बन रहा है. ओके, सो साइड वॉल पे जो भी कैपेसिटेंस जनरेट होगा, दैट विल बी अ जंक्शन कैपेसिटेंस, बट दैट कैपेसिटेंस इज कॉल्ड एज CJSW, साइड वॉल कैपेसिटेंस, साइड वॉल जंक्शन कैपेसिटेंस, एंड दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस, दैट इज CJ0SW. सेम जैसे हम लोगों ने जंक्शन का लिखा वैसे ही यहाँ पे भी CJ0SW रहेगा, दैट इज एट द जीरो पोटेंशियल, a built-in potential, and यहाँ पे CJSW effective junction capacitance will be CJ0SW into XJ. Okay, so first of all यहाँ पे तुम लोग को याद क्या रखना है, what is the CJSW फॉर्मूला, ये याद रखने की जरूरत नहीं है. So is it clear what is CJSW, साइड वॉल जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होता है, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, तो साइड वॉल कहाँ पे आएगा, रीजन 2, 3 एंड 4, whereas फर्स्ट एंड 5 में देयर विल बी ओनली CJ. ओके, तो ये याद रखो, ठीक है. सो दिस वाज द जंक्शन कैपेसिटेंस. नेक्स्ट, ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द मॉसफेट कैपेसिटेंस पार्ट. जंक्शन कैपेसिटेंस तुम लोग को अभी मैंने बताया, एंड एक जो डायग्राम शायद से रह गया था, तो ऐसे वो हो गया, 1 मिनट. ओके, हैव आई एक्सप्लेन्ड यू दिस डायग्राम 3.30 MOSFET एंड इट्स 4 टर्मिनल्स, एंड हर एक 4 टर्मिनल्स के बीच में मतलब मीन्स कहाँ पे कैपेसिटेंस आएगा. सो बिटवीन गेट एंड ड्रेन देयर विल बी CGD, between drain and body there will be CDB, between body and source CSB, sorry, yes, body and source CSB, and gate and source CGS. Okay, and what is this, gate and body, so gate and body here CGB. So is this point clear? Yes, ma'am. Ma'am, I have a Okay. doubt in हाँ, junction potential equation. Can you move the कहाँ पे, junction potential equation? phi naught वाला. Yes, ma'am. Yeah. Hmm. Ma'am, what does Ni represents? Ni is the intrinsic concentration. See, Okay, ma'am. Na and Nd is the doping. मतलब तुम लोग जब डोपिंग करोगे तो कितना डोपिंग कर रहे हो, what is the extent of doping or concentration of doping. Again, whether you are doping it with trivalent and pentavalent, that depends, means that will decide Na and Nd. Okay, but जब डोपिंग नहीं करते हो, at that time what is the, मतलब उस टाइम पे when you are not doping any material, any semiconductor, at that time it is an intrinsic semiconductor, right? Yes, ma'am. हाँ, so that intrinsic semiconductor उसका भी कुछ concentration होता है, so that is called as Ni square, Ni, that is Ni. Okay, Yeah, ma'am. Clear. ठीक है. हाँ, so we with this we have completed with the first module. Okay, first module अपना हो गया है, only उसमें एक part रह गया था, that is left, that is 1.3, that is novel architecture of MOSFETs. So वो हम लोग at the end of you can say syllabus हम लोग study करेंगे, ठीक है. Otherwise मैं उसका तुम लोग को notes दे दूंगी. तो फिलहाल तो if I'm not taking that part, that means that won't be in a syllabus, or sorry, that won't be in a term test. तो ये इतना याद रखो, so term test में वो नहीं आएगा, जितना भी पढ़ाया है वही term test में आएगा. So now we will start with chapter 2, that is MOSFET inverters. Write down all of you, module 2. Now this is actually module 2, MOSFET inverters. MOSFET inverters topic, module का नाम लिखो MOSFET inverters. ओके, अभी ये तो सिंपल है तुम लोग को जो दिख रहा है यहाँ पे. ओके, कैन यू सी फिगर 5.1, विच गेट इज दिस? Not gate. दिस इज अ नॉट गेट, राइट. तो ये तुम लोगों ने पढ़ा है नॉट गेट. सो यहाँ पे इनपुट इज ए, आउटपुट इज बी, एंड बी विल बी ए बार. ओके, बी इज इक्वल टू ए बार, दैट इज इन्वर्टेड वर्जन ऑफ ए. सो ट्रुथ टेबल तुम लोग को पता है, ए 0 है तो बी 1, ए 1 तो बी 0. ओके, तो ये हो गया गेट का बिहेवियर, ये जो नॉट गेट है उसका बिहेवियर है. नेक्स्ट, now we'll see the characteristics. अभी ये गेट है, ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब V out and V in. सपोज B is a V out. अभी तुम लोगों ने 1-0 के टर्म्स में बात किया, अभी हम लोग वोल्टेजेस के टर्म्स में बात करेंगे. ओके, सो B मतलब V out, A मतलब V in. So V out is on Y axis, V in is on X axis. So now check here. So when V in is 0, okay, when V in is 0, what is V out? 1.
VDD. हाँ, सी लॉजिक में तुम लोग 0 और 1 बोलते हो, वोल्टेज इसमें हम लोग 0 एंड VDD बोलेंगे. 0 मतलब लॉजिक 0, VDD मतलब लॉजिक 1. ओके, तो यहाँ पे व्हेन आई एम सेइंग Vin इज 0 मतलब आउटपुट वोल्टेज इज VDD, राइट? इज इट ओके? Okay, ma'am. Yes. Next, and when Vin is VDD, at that time what should be Vout? 0. 0. Okay, so this is the expected characteristics. Okay, this is the expected or you can say ideal characteristics of inverter gate. Okay, inverter gate का ये ideal characteristics है. तो यहाँ पे अगर मैंने इसका सेंटर लिया, मीन्स ऑन एक्स एक्सिस 0 टू VDD है, तो VDD by 2 इज द सेंटर. सो आई विल से टिल 0 टू VDD by 2 लॉजिक 1 आउटपुट, एंड जैसे ही VDD by 2 से ऊपर जाएगा, when the input will try to go up or you can say go beyond VDD by 2, the output should switch to logic 0. Is it okay? ये समझा कैरेक्टरिस्टिक्स? Yes, ma'am. ओके, तो ये जो यहाँ पे जो ड्रॉ किया है, ये ग्राफ को क्या बोलते हैं? कैन एनीबडी टेल मी, ये ग्राफ को क्या बोलते हैं? इज इट Logic VI diagram. कैरेक्टर, इज इट VI कैरेक्टरिस्टिक्स? No, ma'am. Is it VI? No, ma'am. We are not considering our current on any. Yes, right. So this is not VI. ये तो समझा. Okay, then what is this? Okay, Output. हाँ ठीक है. Voltage transfer, like Voltage how transfer input से यहाँ is पे नाम लिखा है. transferred to output. हाँ, yes. How voltage is transferred to output from input. So that's why, see, whenever you are plotting the characteristics between Vout and Vin, it will be voltage transfer characteristics. Okay, so Vin, जो भी Vin है, Vin पे तुम लोग जो भी दोगे, how it is transferred to the output. The characteristics which will show this part is called as VTC, that is voltage transfer characteristics. Okay, और ये जो characteristics यहाँ पे जो तुम लोग देख रहे हो, this is the characteristics of ideal inverter. Okay, ideal inverter circuit अगर तुम लोग सोचोगे तो वो ऐसा characteristics देगा, but it doesn't mean कि practically यही होगा. Okay, practically क्या होता है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे. So is this point clear? Ma'am, हाँ. one point is not clear. वो बीच हाँ. में half क्यों किया? That I have set as a threshold. एक threshold set किया है मैंने. मतलब जब तुम लोग सर्किट डिजाइन करोगे तब डिजिटल में हम लोग नॉर्मली, सो व्हेनेवर यू आर टेकिंग 0 to 5 सपोज, तो 0 to 5 में व्हाट वी विल डू, वी विल अज्यूम 0 to 2.5 के अंदर का अगर वैल्यू है, ओके, 0 to 2.5, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज लॉजिक 0. एंड इफ इट इज बिटवीन 2 मतलब ग्रेटर देन 2.5 एंड लेस देन 5 और इक्वल टू 5, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज लॉजिक 1. तो वो हम लोग 0 और 1 में डिफरेंशिएट करने के लिए एनालॉग वोल्टेज को एक थ्रेशोल्ड सेट करते हैं. इज इट ओके? Yes, ma'am. हाँ ठीक है. तो ये यहाँ पे हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा. ऑल ऑफ यू जस्ट ड्रॉ दिस आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स. जल्दी से ड्रॉ करो, क्विकली ड्रॉ इट, ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए. एंड दिस इज राइट डाउन VTC, वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल इन्वर्टर. जल्दी से ड्रॉ करो. Let me know once completed. Yes, ma'am. Completed? Yes. Okay. ठीक है. Okay, now see this diagram figure 5.3. Okay, अभी ये फिगर में तुम लोगों को क्या दिख रहा है? Now you can say this is a circuit of inverter. Okay, ये NMOS inverter है. NMOS inverter का circuit diagram है. Now what do you mean by NMOS inverter? तो यहाँ पे ऊपर तुम लोगों ने एक गेट देखा, नॉट गेट. How to implement NOT gate using MOSFET, that we are going to see here. Okay, so पहले हम लोग ये structure will try to understand this structure, this circuit, and then we'll go for the next inverter. तो
ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑफ एनमॉस इन्वर्टर। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है देखो, सबसे पहले ये जो नीचे है दैट इज एनमॉस, तुम लोगों को दिख रहा है ये एनमॉस है। दिस इज बॉडी टर्मिनल। एनमॉस का बॉडी जो है दैट इज ग्राउंडेड, एनमॉस का सोर्स इज आल्सो ग्राउंडेड। गेट पे जो वोल्टेज है दैट इज वी इन, गेट पे जो वोल्टेज है दैट इज वी इन। ड्रेन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द लोड। ओके, अभी ये लोड कुछ भी हो सकता है। ओके, डिपेंडिंग ऑन व्हाट लोड यू आर यूजिंग देयर आर टाइप्स ऑफ इन्वर्टर्स। ओके, जैसे अगर तुम लोगों ने लोड के यहाँ पे रेजिस्टर यूज किया, इफ यू आर यूजिंग अ रेजिस्टर देन दैट विल बी कॉल्ड एज रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर। ओके, इफ यू आर यूजिंग डिप्लीशन MOSFET as a load, then depletion load inverter, then enhancement load inverter. Okay, and अगर यहाँ पे instead of load if you are using a PMOS, okay, load के जगह पे तुम लोग अगर P MOSFET यूज कर रहे हो then ऊपर PMOS and नीचे NMOS, then that structure is called as a CMOS inverter. Is it clear मैंने क्या बोला? Yes, ma'am. हाँ, तो ये टाइप्स है 4, याद रखो। रेजिस्टर अगर यूज करते हो तो रेजिस्टर इन्वर्टर, रेजिस्टिव इन्वर्टर। डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट यूज करते हो तो डिप्लीशन लोड इन्वर्टर, नाम ऐसे होता है डिप्लीशन लोड इन्वर्टर, एनहांसमेंट लोड इन्वर्टर। और अगर पीमॉस यूज करते हो तो ऊपर पीमॉस है और नीचे सीमॉस है, सॉरी ऊपर पीमॉस है नीचे एनमॉस है, सो दोनों भी मॉस्फेट एक ही इसमें प्रेजेंट है। सो दिस पर्टिकुलर टाइप और दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड एज अ सीमॉस सर्किट, सीमॉस स्ट्रक्चर। ओके, तो ये वो जो सर्किट रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज सीमॉस इन्वर्टर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये लोड है, तो ड्रेन इज कनेक्टेड टू लोड। लोड का ऊपर एंड, सपोज फिलहाल हम लोग रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं, मतलब वी विल कंसीडर हियर देयर इज अ रेजिस्टर, लोड मतलब रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा दैट विल बी VL। ओके, लोड वोल्टेज, VL इज द लोड वोल्टेज। करंट जो फ्लो होगा लोड के थ्रू दैट इज IL। एनमॉस के ड्रेन के थ्रू जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी ID। सप्लाई वोल्टेज जो दिया है लोड को दैट इज VDD। एंड फ्रॉम दिस ड्रेन वी विल टेक or you can say at this drain we will connect a output capacitance. अभी यहाँ पे एक important चीज है, एक चीज याद रखो, whenever you are studying CMOS circuits or you can say VLSI, तो VLSI में जो लोड रहता है ना, the load is always a capacitive load. Okay, जो भी लोड रहेगा it will be always capacitive, it won't be resistive load. For example, हम लोग ने जब discrete circuit study किया था जैसे EDC में, तो EDC में तुम लोग अगर एम्पलीफायर का सर्किट ड्रॉ करते हो तो नॉर्मली what is there at the load side, लोड पे क्या होता था? Resistor. यस राइट। ओके, तुम लोग जितने भी सर्किट हम लोगों ने स्टडी किए ना EDC के, याद करो, तुम लोग को याद आएगा कि लोड पे हमेशा रेजिस्टर होता था, हमेशा रेजिस्टर। ओके, सो दैट इज द डिस्क्रीट नेचर, डिस्क्रीट में वो सब होता है। बट व्हेन यू आर गोइंग इन VLSI, VLSI मतलब इंटीग्रेटेड है सब, तो इंटीग्रेटेड केस में load is always a capacitive load. So please take this point or you can say note down this point. This is very important. तो load जो भी रहेगा वो हमेशा कैपेसिटिव रहेगा। ओके, तो यहाँ पे this C out is acting as a load. ओके, तो ये यहाँ पे लोड करके एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, C out के अक्रॉस जो भी वोल्टेज रहेगा दैट इज कॉल्ड एज V out, एंड कैन आई से इट विल बी VDS ऑल्सो? इज इट ओके? V out इज इक्वल टू VDS। Yes. हाँ, ड्रेन टू सोर्स भी है, समझ रहे तुम लोग। ओके, ये ड्रेन और सोर्स के बीच में कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई आई कैन से V out इज इक्वल टू VDS। ओके, अभी ये सर्किट का तुम लोग को मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, अभी हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे, हाउ दिस सर्किट इज गोइंग टू एक्ट एज इन्वर्टर। ओके, इन्वर्टर करके कैसे काम करेगा वो हम लोग देखते हैं। तो फॉर दिस सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई V in इज इक्वल टू 0। ओके, सपोज मैंने V in को 0 अप्लाई किया, V in इज 0 वोल्ट। Now you have to tell me what will happen with the NMOS. NMOS के गेट पे तुम लोगों ने 0 वोल्टेज दिया, so what will be the region of operation of NMOS? Cut off. हाँ, कट ऑफ। ऑल ऑफ यू अग्री विद दिस? इसमें किसी को डाउट है? डाउट है तो अभी पूछो, नहीं तो फिर नहीं समझेगा। तो NMOS के गेट पे अगर 0 दिया तो इट विल बी इन अ कट ऑफ मोड, मतलब वो ऑफ रहेगा, ऑन नहीं होगा। इज इट ओके? ठीक है, किसी को कुछ डाउट नहीं है तो मतलब समझ में आया। ठीक है, तो NMOS ऑफ है, तो NMOS ऑफ है मतलब करंट कुछ फ्लो हो रहा है क्या? यहाँ पे ऑफ है मतलब विल इट एक्ट एज अ ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट? ये NMOS Open. ओपन का मतलब ये है कि यहाँ पे देर इज नो ID। ओके, ID विल नॉट फ्लो, या
और यू कैन इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर ड्रॉ करना है तो यहाँ पे तुम लोग ओपन सर्किट दिखा सकते हो, ओके, यहाँ पे ओपन सर्किट। सो इन दिस टाइम, अभी यही टाइम पे क्या होगा, ये जो सी आउट है, कैन आई से नाउ दिस सी आउट एक्चुअली हैज गॉट कनेक्टेड टू द वीडीडी थ्रू लोड, कैन आई से ये Yes, ओपन है, सी ये ओपन है मतलब यहाँ पे कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये ओपन है पूरा, यहाँ पे ओपन सर्किट दिखाओ तुम लोग। इफ यू वांट टू ड्रॉ इक्विवेलेंट यू कैन ड्रॉ दिस, मैं एक्सप्लेन करूंगी, ओके। तो अभी यहाँ पे ओपन है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद दिस सी आउट विल स्टार्ट चार्जिंग, ओके, दिस विल स्टार्ट चार्जिंग टुवर्ड्स वीडीडी थ्रू दिस लोड रेजिस्टर। सपोज मैं अज्यूम करूँ कि यहाँ पे रेजिस्टर है, ओके, तो जो भी यहाँ पे लोड रहेगा थ्रू दैट लोड दिस सी आउट विल स्टार्ट चार्जिंग, और चार्जिंग उसका टाइम लेगा, कितना चार्जिंग टाइम है, और वो उतने टाइम में वो फुल्ली इट विल चार्ज टू वीडीडी, दैट मींस, एंड आई विल अज्यूम कि उसका चार्जिंग टाइम बहुत कम है, इट इज इन माइक्रो सेकेंड्स, ओके, तो वो जल्दी से चार्ज हो जाएगा। एंड व्हाट विल बी द आउटपुट अक्रॉस सी आउट देन, VDD. वीडीडी, राइट। सो ये कब हुआ, जब तुम लोगों ने वी इन 0 दिया, एट दैट टाइम आई एम गेटिंग वी आउट अक्रॉस सी आउट एज वीडीडी, इज इट ओके? Yes, ma'am. ये सबको समझा? Yeah, ma'am. Okay, so can I say here that this particular circuit has performed the inverter action? इनपुट Yes, 0 दिया, ma'am. आउटपुट वीडीडी मिल रहा है, समझा क्या? इनपुट 0 दिया, आउटपुट वीडीडी मिल रहा है, इज इट ओके? इन्वर्ट हुआ Yeah. सिग्नल? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम लोग ने लॉजिक जीरो का केस देखा। नाउ विल सी द केस ऑफ लॉजिक 1। लॉजिक 1 मतलब हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, व्हाट विल बी इनपुट? VDD. वीडीडी, राइट, ओके। लॉजिक 1 यहाँ पे मुझे देना है, मतलब आई विल कनेक्ट दिस गेट टू वीडीडी, ओके। अभी वी इन मैंने वीडीडी दे दिया, सो कैन आई से जो वी इन है इट इज नथिंग बट वीजीएस, कैन यू सी दिस? वी इन इज नथिंग बट गेट टू सोर्स, VGS, ओके। सो इफ आई एम सेइंग कि वी इन मैंने VDD दिया है, मतलब वी इन का वैल्यू VDD है, कैन आई से VGS इज नथिंग बट VDD? Yeah, ma'am. ओके, अभी VDD सपोज हम लोग अज्यूम करें 5 वोल्ट है, ओके, VDD इज 5 वोल्ट, मतलब VGS 5 वोल्ट है। एंड सपोज ये जो NMOS है, ये NMOS का थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज 0.5 और 1 वोल्ट, सपोज 1 वोल्ट है, ओके। NMOS का थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 है, वी विल अज्यूम NMOS का थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज 1, तो 5 वोल्ट that is VGS, can I say VGS is now greater than VT? Yes. थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 है और उससे VGS ज्यादा है, मतलब VDD is 5 and 5 is greater than 1, that's why can I say now this MOSFET will turn on? Yes, it will be Yes, on. ma'am. मतलब जैसे ही तुम लोगों ने VDD दिया, पहले जो MOSFET ऑफ था अभी वो ऑन हो गया, ओके, नाउ इट हैज टर्न्ड ऑन। एक बार वो ऑन हो गया, सो कैन आई से एट दैट टाइम नाउ ID will start flowing through it, Yeah, ma'am. ओके, ID फ्लो होना चालू हो जाएगा। ऑन हो गया मतलब वो कौन से रीजन में जाएगा? Ohmic region. हाँ, अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, सी नाउ हियर यू कैनॉट डिसाइड द रीजन टिल द पॉइंट यू चेक द वोल्टेजेस, ओके। तो तुम लोग को ऑन हो गया मतलब देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, इट कैन गो इन लीनियर और इट कैन गो इन सैचुरेशन। तो तुम लोग को मैंने एक इक्वेशन दिया था, हाउ टू चेक वेदर इट इज इन अ लीनियर और सैचुरेशन, तो वो तुम लोग क्या करोगे, बाद में हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। सो इफ यू चेक द कंडीशंस, तो तुम लोग को पता चलेगा कि दिस विल गो व्हेन यू आर गिविंग VDD ओवर हियर, सो दिस विल गो इन अ सैचुरेशन रीजन, ठीक है, वो सैचुरेशन रीजन में जाएगा, मतलब इट विल बी ऑन, इतना तो श्योर है, वो ऑन रहेगा बट इट विल गो इन अ सैचुरेशन रीजन। सो सैचुरेशन में गया, सो कैन आई से इट विल एक्ट एज अ क्लोज सर्किट, Yes, ma'am. Yeah. ओके, ओके, सो इट विल एक्ट एज अ क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट मतलब अभी ये जो सी आउट था जो पहले चार्ज हुआ था, ओके, VDD पे, अभी क्या होगा, नाउ ये क्लोज सर्किट है, मतलब दिस पॉइंट, मतलब ये जो ड्रेन पॉइंट है, कैन आई से देयर इज अ शॉर्ट सर्किट existing between drain and ground because of this on MOSFET? Ma'am, can you repeat this part? हाँ, ये MOSFET
अभी ऑन हो गया, तो ऑन हो गया मतलब, तो मैंने तुम लोग को बोला है कि सैचुरेशन में गया, फिलहाल ये अज्यूम कर लो कि वो सैचुरेशन में ही गया है, ठीक है। कैसे गया उसके लिए हम लोग के पास इक्वेशन है, वो तुम लोग को इक्वेशन से सॉल्व कंडीशन चेक करके करना होता है, तो वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल अज्यूम करो कि वो सैचुरेशन में गया। सैचुरेशन में गया मतलब वो कंडक्ट करना चालू हो जाएगा, इट विल कंडक्ट दिस आईडी, सो इट विल एक्ट एज अ क्लोज सर्किट। ओके, क्लोज सर्किट मतलब इट इज अ शॉर्ट सर्किट। ओके, तो शॉर्ट सर्किट मतलब क्या, ये ड्रेन पॉइंट एक्चुअली हैज गॉट कनेक्टेड टू दिस ग्राउंड। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. ओके, तो इससे क्या हुआ, अभी ये जो कैपेसिटेंस है, ओके, कैपेसिटेंस चार्ज हुआ था, सो कैन आई से नाउ दिस कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू दिस मॉसफेट। Yeah, ma'am. ओके, अभी कैपेसिटर क्या होगा, नाउ इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू दिस मॉसफेट, क्योंकि कैपेसिटर को अभी डिस्चार्जिंग के लिए पाथ मिल गया। ओके, पाथ कैसे मिला, क्योंकि ये मॉसफेट अभी ऑन हो चुका, इट इज इन सैचुरेशन, सो इट कैन बी रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट हो गया यहाँ पे, फ्रॉम ड्रेन टू ग्राउंड देयर इज अ शॉर्ट प्रेजेंट, सो यू कैन से देयर इज अ लो रिएक्टेंस पाथ, ओके, लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर द करंट, तो करंट यहाँ से यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। दैट मीन्स सी आउट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू द मॉसफेट, एंड सी आउट डिस्चार्ज होना अगेन उसका कुछ डिस्चार्जिंग टाइम रहेगा। So after that time, what will happen? What will happen with the voltage across Cout? 0 volts. Zero, क्योंकि डिस्चार्ज हो गया। ओके, कैपेसिटर व्हेन इट कंप्लीटली डिस्चार्ज एट दैट टाइम द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज जीरो। सो ये जो होता, ये अभी मैंने बताने के लिए इतना टाइम लगा, बट ये जब होता है तो इट हैपेंस क्विकली, तुम लोग सोच भी नहीं सकते, बहुत जल्दी, क्योंकि इसका टाइम इज इन माइक्रो सेकेंड्स, तो बहुत जल्दी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। सो जैसे ही तुम लोग यहाँ पे कितना दोगे, 1 वोल्ट, सॉरी 5 वोल्ट, as soon as you apply 5 volt over here, you will get 0 over here. Is it okay? क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, क्विकली इट डिस्चार्जेस एंड यू विल गेट वी आउट एज जीरो। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes. हाँ, सो दिस इज द इन्वर्टर एक्शन। तो अभी हम लोग ने दोनों केसेस देखे, व्हेन लॉजिक इज जीरो, इनपुट इज जीरो, आउटपुट इज VDD, एंड व्हेन इनपुट इज VDD, आउटपुट इज जीरो, दैट इज वी आउट इज जीरो। इज इट ओके? ये समझा सबको ना? Yes, ma'am. Clear. ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली आउटपुट स्टेट कैसे चेंज होता है, बिकॉज ऑफ द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ दिस सी आउट लोड कैपेसिटेंस। ओके, ये याद रखो, सी आउट पे क्या चार्ज है, दैट विल डिसाइड आउटपुट। सो सी आउट का चार्जिंग कब होता है, सी आउट का डिस्चार्जिंग कब होता है, वो अपने को याद रखना है। सो व्हेन वी इन इज जीरो, एट दैट टाइम सी आउट विल चार्ज थ्रू लोड, क्योंकि यहाँ पे तो ऑफ है, तो यहाँ पे तो वो कुछ नहीं कर सकता, तो सी आउट विल स्टार्ट चार्जिंग थ्रू लोड टूवर्ड्स VDD, and when Vin is zero, sorry, Vin is VDD, at that time this MOSFET will go into saturation, it will act as a closed switch, so this Cout has got path to discharge, so it will discharge through this MOSFET, and the voltage across Cout will reduce to zero, so you will get Vout as zero when Vin is VDD. So in this way, this particular circuit will perform the inverter action, and this circuit is called as NMOS inverter. इसमें कुछ भी डाउट है अभी तक? समझा सबको? Yes, ma'am. Clear. ओके, ठीक है। Okay, see, can you see this circuit, resistive load inverter? Yeah, ma'am. ओके, सो मैंने तुम लोग को बताया था कि लोड की जगह पे इफ यू आर यूजिंग अ रेजिस्टर, देन दैट पर्टिकुलर सर्किट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर सर्किट। तो अभी यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो अपने को स्टडी करने हैं पहले, सो विल स्टडी दोस टर्म्स। Ma'am, हाँ, वेट एक मिनट। हाँ, यस प्रियंका बोलो। I just had a general doubt. Like हाँ, हाँ, when हाँ। we use resistive, capacitive, inductive load, तो what type of load के लिए dissipation बहुत कम रहता है? मतलब what is the most हाँ, generally used type of load? ओके, नाउ ये तुम लोग एक मतलब सिंपल लॉजिक लगा सकते हो
ओके, इफ यू वांट टू कंपेयर बिटवीन रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, तो किसमें कम हो सकता है? व्हाट इज योर रेजिस्टर गेस? में ज्यादा डिसिपेट होगा. यस, राइट. सो यू तो समझ में आया ना तुम लोग को? सो अभी तुम लोग को ये रीजन भी पता चल गया रहेगा कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग रेजिस्टर इन चिप में ज्यादा Output. रेजिस्टर हम लोग यूज नहीं करते इन इंटीग्रेटेड सर्किट. ओके, इन इंटीग्रेटेड सर्किट हम लोग वी विल नॉट यूज अ रेजिस्टिव लोड, क्योंकि रेजिस्टर विल डिसिपेट मोर पावर. ओके, पावर कंजम्पशन या पावर डिसिपेशन बाय द रेजिस्टर इज मोर एज कंपेयर्ड टू कैपेसिटर. और जहाँ पे पावर डिसिपेशन ज्यादा होता है वहाँ पे हीट प्रोड्यूस ज्यादा होता है. एंड दैट अगर ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ देन व्हाट कैन हैपन विद अ चिप? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. हाँ, चिप से डैमेज भी हो सकता है. सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट देन कि Yes, व्हाई ma'am. वी आर यूजिंग सी आउट, मतलब कैपेसिटिव लोड क्यों यूज करते हैं? ओके, वही So, डिस्क्रीट ma'am, सर्किट. हाँ we can say that जैसे जैसे अगर नैनो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता हाँ जाएगा, हाँ then there will be no scope for using resistances, हाँ, मतलब यस यस, with respect रजिस्टर. to हाँ capacitors. हाँ, यस. इवन इवन अभी भी तुम लोग इफ यू चेक ना, तुम लोग अभी भी चेक कर सकते हो. इवन इफ यू चेकिंग जस्ट गूगल वेरियस वीएलएसआई सर्किट्स, अगर तुम लोग चेक करोगे ना, यू विल फाइंड, अगर जितना भी सर्किट्स है ना, एक तो मैक्सिमम यू विल फाइंड मॉसफेट्स एंड दिस कैपेसिटेंस. मॉसफेट एंड कैपेसिटेंस ही ज्यादा दिखेंगे, रेजिस्टर बहुत कम, मतलब नहीं, ना के बराबर. रेजिस्टर वोंट बी देयर एट ऑल. एंड इफ यू आर सर्किट एंड इफ यू आर डिजाइनिंग अ सर्किट विद अ रेजिस्टर, तो तुम लोग को वो याद रखना है कि उसके बहुत डिसएडवांटेजेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर डिजाइनिंग अ सर्किट यूजिंग अ रेजिस्टर, तो रेजिस्टर को अगर मुझे फैब्रिकेट करना है, ठीक है, तो रेजिस्टर को फैब्रिकेट करने के लिए एक तो उसको एरिया बहुत ज्यादा लगता है. दैट इज फर्स्ट थिंग. it acquires it needs a very large area on a chip. So that is the biggest disadvantage. तो ऐसा तो नहीं चलेगा कि मॉसफेट, मतलब एक जगह पे अगर मॉसफेट है, सपोज मॉसफेट को अगर 10% लग रहा है तो रेजिस्टर को 20% लगेगा. तो ये तो नहीं चलेगा ना कि इतना स्पेस वो ले रहा है. ये फर्स्ट डिसएडवांटेज है. सेकंड इज डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन, पावर कंजम्पशन. ओके, मॉसफेट उतना पावर नहीं लेगा जितना रेजिस्टर पावर लेगा. ओके, एंड ये तो अभी सिंपल इन्वर्टर सर्किट है. अगेन इफ यू आर गोइंग फॉर द एम्पलीफायर, मतलब एनालॉग सर्किट में जाओगे, तो इफ यू आर यूजिंग अ रेजिस्टिव लोड, तो दैट विल रिड्यूस योर वोल्टेज स्विंग एट द आउटपुट. आउटपुट का वोल्टेज स्विंग कम हो जाता है. तो दैट इज द एनालॉग पार्ट. तो मतलब उसका डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है. सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग, और वी विल ट्राई टू अवॉइड, जितना कम यूज करो रेजिस्टर इन अ वीएलएसआई, दैट विल बी गुड. समझा? Yes. ओके, ठीक है. तो हाँ, सो अभी यहाँ पे कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है. व्हाट इज दिस डी आउट बाई डी वी इज इक्वल टू -1, ये तुम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स में बताऊंगी. सबसे पहले नाउ विल राइट 4 टर्म्स. राइट डाउन VOH. ये टर्म्स अपने को लिखने हैं. दीज आर सम टर्म्स विच वी आर गोइंग टू सी ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, VTC जो होता है, वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, आई विल शो यू व्हाट इज दैट. पहले हम लोग देख लेते हैं तो तुम लोग को पता चलेगा. ओके, कैन यू सी दिस कैरेक्टरिस्टिक्स? Yes, ma'am. ओके, क्योंकि तुम लोग को पहले मैं बोलूंगी कि VOH लिखो और पता नहीं है VOH क्या है वगैरह, तो पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं. ओके, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? जस्ट रीड द नेम. Resistive load रेजिस्टिव inverter. लोड इन्वर्टर. ओके, सी व्हेनेवर यू आर सेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वहां पे नीचे दिया है किसका है. ओके, सी टिपिकल VTC. टिपिकल मतलब अगर तुम लोग कोई भी रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर जो अभी मैंने ऊपर दिखाया सर्किट, वो लेते हो और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यू आर ट्राइंग टू फाइंड, देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, सो दिस इज अ VTC, वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर सर्किट. अभी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोग को पता है कैसा है. ओके, जो सबसे पहले तुम लोगों ने ड्रॉ किया था, दैट इज द आइडियल इन्वर्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दिस इज द प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर सर्किट. तो ये समवॉट सिमिलर है बट नॉट एग्जैक्टली, दैट यू कैन सी ओवर हियर. अभी यहाँ पे there are 4 voltages which are very important and which will decide the noise margin. अभी noise margin क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे. पहले वो 4 अलग अलग voltages कौन से, that will see. So first voltage is here, that is VOH. Can you see this VOH? यहाँ पे लिखा है. ओके, सो दिस VOH का फुल फॉर्म क्या है? आउटपुट हाई. OH मतलब V मतलब वोल्टेज, OH मतलब आउटपुट हाई. सो VOH इज दिस वोल्टेज. नेक्स्ट इज VOL. ये 5 दिख रहा है यहाँ पे.
सॉरी VOL मतलब सॉरी ये वाला, कैन यू सी दिस वोल्टेज, ये पॉइंट ये देखो यहाँ पे VOL ऑन y एक्सिस VOL मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम से कम कितना जा रहा है, ओके, व्हाट इज द मिनिमम वोल्टेज एक्वायर्ड बाय द आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एज VOL। कैन यू सी दिस पॉइंट, ये वाला, Yeah, ma'am. ओके, सो ये जो लेवल रहेगा ना, दिस विल बी VOL। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VOL फॉर दिस सर्किट? Can I say it is greater than 0? 0.12? Yes. Yes, right. ठीक है. So that is VOL, that is 0.1 or 2. So that is not exactly 0. ठीक है. And what is VOH? VOH का value is here, that is 5 volt. So VOH मतलब it is the highest value of output possible. Okay. Next is VIL and VIH. So VIL मतलब this is a point. अभी ये point क्या है, तुम लोग को पता है कि when you are increasing the input voltage from 0 to 5 input voltage, at that time when input is 0 output is high, that is 5 volt. बट जैसे जैसे तुम लोग इनपुट वोल्टेज बढ़ाते जाओगे देयर विल बी वन पॉइंट एट विच व्हाट विल हैपन, VT नॉट विल बी क्रॉस्ड। VT नॉट मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ MOSFET विल क्रॉस्ड। उसके बाद नाउ ट्रांजिस्टर विल गो इन अ सैचुरेशन रीजन, ओके, तो वो सैचुरेशन में जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, नाउ जैसे वो सैचुरेशन में गया करंट विल स्टार्ट, और यू कैन से वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज था अभी वो कम होना चालू हो जाएगा, ओके, सो इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। सो दैट रिडक्शन इन आउटपुट वोल्टेज यू कैन सी ओवर हियर, ओके। जैसे जैसे तुम लोग इंक्रीज वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो दिस आउटपुट वोल्टेज गो ऑन डिक्रीजिंग। सो ये पूरा ट्रांजिशन रीजन है, मतलब ये हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक पूरा ट्रांजिशन हुआ। फिर आफ्टर दिस वैल्यू दैट इज VIH वैल्यू के बाद if you are again increasing the input voltage, then again there is a further decrease in output voltage and finally it will come to the lowest output value, okay. So this is the general characteristics of the resistive load inverter. अभी यहाँ पे VIL and VIH क्या है, तो ये जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग प्लॉट करते हैं, सो दिस इज लॉजिक हाई लेवल ऊपर वाला, यहाँ पे जो है दैट इज लॉजिक लो आउटपुट लो, एंड ऊपर जो है आउटपुट हाई। आउटपुट हाई एंड आउटपुट लो के बीच में देर इज अ रीजन वेयर द आउटपुट शिफ्ट्स फ्रॉम हाई टू लो, और यू कैन से देर इज अ ट्रांजिशन ऑफ द आउटपुट फ्रॉम हाई टू लो, दैट रीजन इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन रीजन। ये ट्रांजिशन रीजन पे इफ यू यहाँ पे एक यू कैन से देयर इज अ कर्व, ओके, ये कर्व है। सो if you draw a tangent over here and if you try to find the slope of this curve at this point, so that slope का value will be -1. Similarly same point यहाँ पे भी आगे आएगा, again there is a curve here and ये curve पे भी तुम लोग same you will try to find out dV out by dV in, so dV out by dV in का value will be -1. so ऐसे दो बार पॉइंट्स आएंगे, एक यहाँ पे और यहाँ पे। so those two points are called as, one point is called as VIL and second point is called as VIH. अभी VIL and VIH का definition क्या है and VOH VOL क्या है, that is given over here. See, so VOH मैंने क्या बोला था, maximum output voltage when the output level is logic 1, okay, output level is logic 1, उस टाइम पे output voltage कितना है, that is VOH. VOL is minimum output voltage when the output level is logic 0. VIL is maximum input voltage which can be interpreted as logic 0. Maximum input voltage जो कि हम लोग logic 0 consider करेंगे, that is VIL, and maximum input voltage which can be interpreted as logic 1 is called as VIH. Minimum input voltage which can be interpreted as logic 1, that is VIH. Okay, तो ये अभी तुम लोग फिलहाल अगेन वी विल रिपीट दिस पार्ट इन अ नेक्स्ट लेक्चर कि एग्जैक्टली VOH VOL क्या है। तो ये वो वोल्टेजेस है और वो वोल्टेजेस हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पे ऑन द VTC
will show in this way, जो यहाँ पे दिखाया है. So this is first point will be always VOH. उसके बाद जो आएगा that is VIL, जहाँ पे slope becomes -1. उसके बाद again there will be one point where the slope becomes -1. That will point is VIH. And उसके बाद it will acquire, output will acquire steady low output voltage which is VOL. Okay, so ये 4 points बहुत important है. These 4 voltages are very much important for analyzing any inverter circuit. Okay, so ये हम लोग next इसमें continue करेंगे. So is it okay? Hello. Yes, ma'am. Okay, ठीक है. So okay, so I have taken the attendance. You can leave. Thank you. हाँ, okay, bye. Hello, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, what were the 4 types of loads? What, that we what? can what were the 4 types of loads that we can connect to the 4 types of load. हाँ, resistive load, depletion load, depletion load, enhancement load, and CMOS, right? and last जो है वो part that is CMOS inverter. CMOS में ऊपर PMOS रहेगा, लोड की जगह पे PMOS होता है. Okay? Yes, ma'am. Thank you. Okay, bye. Thank you, Ms. Baba.